Students, today we will study the poem She Walks in Beauty, and this poem is written by George Gord Lord Byron. First of all, let's see who was George Gordon Lord Byron. He was a great younger romantic poet, born in 22 January in 1788 in England. He was a well-known poet and politician, and he was a national hero for Greeks. In 1824, when he was 36 years old, he died of fever on 19 April. Let's see what was romantic period, or what were the basic characteristic of romantic period. Romantic age, as we have already seen in many poems, it was a movement in art, literature and music, a philosophical, literary and artistic and culture era, industrial revolution, and concepts like nature, love and moral issues. Romanticism can be understood by these words that are given below: inspiration, imagination, intuitions, individuality, and idealism. These were the main words that can describe the romantic age very well. Let's see the poem now. She Walks in Beauty. It is a short poem written in 3 stanzas. Each stanza contains 6 lines. Now read the poem. She walks in beauty like the night of cloudless clime and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspects in her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven's to gaudy days denies. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace, which waves in every raven tresses, or softly lightens o'er the face, where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place. And on that cheek and over that brow, oh soft, so calm, and eloquent, the smile that win, the tint that glow, what tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. So here we can clearly see that the title as suggests she walks in beauty. Here the poet talks about a woman, a lady who is so beautiful, and the poet says that she walks in beauty. It does not mean that she is walking in beauty. She is so beautiful and graceful. यहाँ पे पोइट है जो एक महिला के बारे में बात करते हैं, उसकी सौंदर्य या उसकी सुंदरता के बारे में बात करते हैं. Descriptions of the poem, line 1 and 2. She walks in beauty like the night of cloudless clime and starry skies. Here the poet talks about an unnamed woman who walks in beauty. यहाँ पे कवि है एक अननेम्ड महिला के बारे में बात करते हैं जिसका नाम यहाँ पे दिया नहीं है. उसकी सुंदरता के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत ही सुंदर है. Her beauty is compared to night. The poet says that like the night of cloudless clime and starry sky. Her beauty is like night, ऐसी रात्रि जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें आकाश में एक भी बादल कहीं भी नहीं है और सिर्फ आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं. ऐसी सुंदरता उस महिला की है. नो क्लाउड एंड ए लॉट ऑफ स्टार्स, यानी कि आकाश में एक भी बादल नहीं है, सिर्फ चमकते हुए टिमटिमाते हुए सितारे हैं. उसी प्रकार उस महिला की सुंदरता है. And all that is best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. Here the poet contrasts between dark and light meet in her a wonderful way. The poet says that and all that is best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, यानी कि
जितनी भी सुंदरता है, जो बेस्ट है डार्कनेस का, अंधेरे का, एंड सुंदरता का, ब्राइटनेस का, उजाले का, यानी कि जैसे कि सुबह के समय या शाम के समय जब अंधेरा और उजाला एक साथ एक ही क्षितिज पे आते हैं, उसी प्रकार इस महिला की खूबसूरती में जो अंधेरा है या जो उजाला है उसकी खूबसूरती एक साथ संयुक्त रूप से दिखाई देती है। मीट इन हर एस्पेक्ट्स एंड हर आइज़, ये उसकी छवि में और मुख्य रूप से उसकी आंखों में एक साथ दिखाई देती है। यानी कि उसकी आंखें इतनी गहरी और डार्क हैं, काली हैं, लेकिन साथ ही साथ कैसी हैं, ब्राइट भी है, चमकती हुई भी है। यहाँ पे क्लियरली कॉन्ट्रास्ट यूज किया गया है। एक वंडरफुल वे में उसकी खूबसूरती या उसकी आंखों के बारे में पोएट बात करते हैं। Thus mellowed to that tender light, which heavens to gaudy days denied. The light is more intense during the day, the light is gaudy in day. और इस प्रकार जो टेंडरनेस है, जो कोमलता है, जो लाइट है, विच हेवन टू गॉडी डेज डिनाइट। गॉडी डेज मीन्स जो बहुत ही चमकदार चमकीले दिन होते हैं, जिनमें उजाला बहुत ही तीव्र गति से चमकता है। उन दिनों में भी इतनी ब्राइटनेस नहीं होती है जितनी कि इस महिला को या इसकी आँखों को कुदरत ने प्रदान की है, प्रकृति ने प्रदान की है। यानी कि इसकी आँखें बहुत ही खूबसूरत और सुंदर हैं, जो कि प्रकृति ने या ईश्वर ने उन सुंदर दिनों को भी नहीं दी है, जो कि बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तेज चमकीली रोशनी से चमकते हैं। Let's see the summary of first stanza. The speaker compares a beautiful woman who is walking to a clear night sky full of bright stars. The finest light and darkness come together in harmony in this woman's appearance, particularly within her eyes. This gentle and delicate play of light is heavenly indeed. Heaven usually refuses to grant this supernatural light to the showy daytimes. यहाँ पे जो स्पीकर है, जो कि पोइट हैं, वो एक खूबसूरत महिला की तुलना करते हैं एक ऐसी रात्रि से जो कि तारों से भरी हुई है। द फाइनेस्ट लाइट एंड डार्कनेस कम टुगेदर इन हारमनी। जो सबसे खूबसूरत उजाला होता है या डार्कनेस की जो साइड होती है, अंधेरे की जो साइड होती है, वो इस महिला के अंदर दिखाई देती है, और मुख्य रूप से उसकी आँखों के अंदर। दिस जेंटल एंड डेलिकेट प्ले ऑफ लाइट इज़ हेवनली इंडीड। और जो ये खूबसूरती उसमें दिखाई देती है वो कैसी है, नैसर्गिक सुंदरता है, बहुत ही प्राकृतिक ब्यूटी है, बहुत ही खूबसूरत है, जो कि हेवन या ईश्वर है, जो कि बहुत ही गॉडी डेज होते हैं, उनको देने से भी इनकार कर देता है। नेक्स्ट स्टेंजा। वन शेड द मोर, वन रे द लेस, had half impaired the endless grace, which weaves in every raven tress, or softly lightens over her face. यहाँ पे पोइट कहता है कि वन शेड मोर, वन रे द लेस, had half impaired the nameless grace, which weaves in every raven tresses, or softly lighten over her face. यहाँ पे पोइट है एक परफेक्ट बैलेंस शो करता है बिटवीन शेड्स एंड लाइट्स, और कहता है कि अगर एक शेड उस कलर से ज़्यादा या एक किरण या एक शेड कम कर दी जाए तो वो क्या होगा, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। नेमलेस मीन्स जैसे कि पहले ही कहा है कि उस महिला का नाम इस कविता में दिया हुआ नहीं है, तो नेमलेस ग्रेस ये शब्द यूज़ किया गया है उस ब्यूटीफुल महिला के लिए जिसकी पोइट है जो तारीफ़ कर रहा है, कि अगर एक शेड ज़्यादा है, एक शेड कम कर दी जाएगी तो उसकी ब्यूटी को क्या कर देगी, ख़राब कर देगी, हाफ इम्पेयर्ड कर देगी। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेसेस, और उसकी सुंदरता रेवन ट्रेसेस, रेवन मीन्स कौवा होता है, ब्लैक कलर का होता है, तो उसके बालों की तुलना की जा रही है एज ए मेटाफोर यूज करके, कि उसकी जो ट्रेसेज हैं, ट्रेस मीन्स बाल हैं, लटें हैं, वो कैसी हैं, जैसे कि कौवा होता है ब्लैक कलर का उसी प्रकार, और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, और धीरे धीरे बहुत ही हल्के से उसके चेहरे के ऊपर क्या कर रही हैं, उड़ रही है, यानी कि उसके बालों की सुंदरता की वो तारीफ कर रहा है। She has black hairs and her nameless beauty lightens her face, और उसका फेस है बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है, यानी कि उसकी सुंदरता इतनी ही बहुत ही वाइट कलर की होगी शायद वो, और उसके चेहरे के ऊपर है जो ब्लैक कलर के एकदम कौवे की भांति ब्लैक कलर के काले बालों
की जो लटें हैं वो क्या कर रही है, हल्की हल्की हवा में उड़ रही है। Summary of stanza number 2. A touch more shade or even one ray of light would have greatly diminishes the woman's beauty. This beauty, which is hard to put into words, shows itself in every strand of the woman's hair and gently falls on her face. Her sweet angelic emotions play out on her face, revealing how pure and precious this woman is. Where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place. The poet talks about her thoughts. Where thoughts serenely sweet express. यहाँ पे एलिट्रेशन है, sweet serenely express how pure, how dear their dwelling place. पोइट कहता है कि जो महिला है वो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर तो है ही, साथ ही उसका मस्तिष्क भी बहुत ही खूबसूरत, उसकी सोच भी बहुत ही सुंदर है। और उसके मस्तिष्क में कैसी सोच विराजमान है, सीरेनली स्वीट, बहुत ही शांत और बहुत ही मधुर सोच उसके माइंड में है। हाउ प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेसेस, और उसका जो प्लेस है यानी कि जहाँ ये सुंदर सोच विराजमान करती है, विराजमान है, वो कैसा है, वो स्थान बहुत ही प्योर है, बहुत ही अद्भुत है। पोइट यहाँ पे पीसफुल थॉट्स एंड एक्सटीरियर एंड इंटीरियर थॉट्स एंड प्योर एंड इवैल्यूएबल इनोसेंट माइंड की बात करता है। नाउ लाइन नंबर 13 to 15, स्टैंजा नंबर 3. And on that cheek and all that brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smile that win, the tint that glow. पोइट कहता है कि एंड ऑन दैट चीक, अब उसकी भारी सुंदरता का वर्णन करते हुए पोइट कहता है, अभी अभी जस्ट पोइट ने लास्ट स्टैंजा में बात की है कि उसकी सोच के बारे में, और सोच कैसी ब्यूटी है, इंटरनल ब्यूटी है। और अब जब वो उसकी चीक्स की बात करता है, उसकी ब्रोज की बात करता है, तो कौन सी ब्यूटी है, एक्सटर्नल ब्यूटी है। उसकी भारी सुंदरता की बात करते हुए पोइट कहता है कि एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, सो सॉफ्ट, सो काम, येट एलोक्वेंट, उसकी जो चीक्स हैं और उसकी जो ब्रोज हैं, जो कैसे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, और काम, सो काम, यानी कि उसकी ब्रो से बहुत से कैसे लगता है कि उसका एक्सप्रेशन कैसे है चेहरे पे, बहुत ही शांत हैं, येट एलोक्वेंट, और बहुत ही भव्य हैं। द स्माइल दैट विन, द टिंट दैट ग्लो, और जो उसके चेहरे पे जो मुस्कान है और जो ग्लो है वो बहुत ही प्यारा है, किसी भी हृदय को जीतने वाला है। यहाँ पे पोइट उसकी सॉफ्टनेस, उसकी कामनेस और उसके एलिगेंस के बारे में बात करता है, और वो उसकी इनर ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसका फेस कैसा है, एक्सप्रेसिव है। ये टोटल एंड टोटल हम देखते हैं कि इस कविता में जो कवि हैं या लॉर्ड बायरन हैं, वो एक महिला की प्रेज़ कर रहे हैं, एक अननेम्ड महिला। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो उसकी कज़िन हैं, उसकी खूबसूरती के बारे में बात करते हुए ये कविता उन्होंने लिखी है, और उसकी खूबसूरती का वर्णन इस कविता में वो करते हैं। नाउ लास्ट लाइन ऑफ द पोएम्स 16 to 18. What tale of days in goodness spent, a mind of peace with all below, a heart whose love is innocent. यहाँ पे पोइट कहता है कि सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, but also she has peaceful mind and her heart is full with innocent love. A tale of days in goodness spent, बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट। यहाँ पे पोइट कहता है कि वो सुंदर तो है ही, साथ ही उसके जीवन के बारे में बताता है कि उसकी जो जीवन है अभी तक किस में बीता है, अच्छाई में बीता है, गुडनेस करते हुए बीता है। ए माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, और उसका मस्तिष्क कैसा रहा है, हमेशा शांति से भरा हुआ है, कभी भी उसने गुस्सा या इरिटेशन नहीं शो की है। ए हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट, और ऐसा एक हृदय उसके पास है जो कि किस चीज़ से भरा हुआ है, प्योर लव से, एक ऐसी लव से जो कि इनोसेंट है, जो कि बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है। सो द पोएम एंड्स हियर। नाउ सी इट्स क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। थीम्स, major themes of this poem is beauty and innocent love. Here the poet talks about, a long description is given of an unnamed woman's beauty, and he talks about his physical beauty as well as his internal beauty.
Second theme is innocent love. In the last line, we see that a heart whose love is innocent, the poet says. He tells how gorgeous she is. Her love is innocent like her personality. Here, poet uses the symbols dark and bright. These symbols are used for night and day. Different from conventional English literature, instead of summer days, her beauty is compared to dark nights. The harmony of two opposite. She got the best of both dark and bright. Another symbol is used of raven tresses. In conventional literature, beauties are generally pale and blonde. This lady is brunette. Symbol स्माइल एंड ब्लसेस. यहाँ पे उसकी स्माइल और जो ब्लसेस हैं वो कंपेयर की गई है. नॉट ओनली हर प्रीटी फेस बट ऑल्सो हर इनर ब्यूटी is mirrored by her outer beauty, reflection of her thoughts and feelings. Personification, which heaven to gaudy days denies. यहाँ पे heaven का personification किया गया है. The smile that win, the tint that glow, but tell of days in goodness spent. Tell of time, where thoughts serenely sweet expresses, expressing thought in her face. And woman's smile tints blushes in her cheeks, speaks as if they were human. यहाँ पे उसकी स्माइल का उसके ग्लो का पर्सोनिफिकेशन किया गया है. मेटाफोर, ड्वेलिंग प्लेसेस ह्यूमन माइंड के लिए यूज़ किया गया है या फिर जिस महिला की वो तारीफ़ कर रहे हैं उसके लिए यूज़ किया गया है. रेवन एज ए मेटाफोर यूज़ किया गया उसके डार्क हेयर्स के लिए. सिमिली, फर्स्ट लाइन में देखते हैं सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट. वुमेन की तुलना एक रात्रि से की गई है. Now see the language used. Here the poet uses 3 stanzas, 18-line poems of 6-line stanzas, and rhyme scheme of the poem is AB, AB, AB in each stanzas. Second stanza rhyme scheme is CD, 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 and third stanza rhyme scheme is EF, EF, EF. Setting of the poem, she walks in beauty does not really have a particular sense of location or place. Primarily, it takes place in the mind of the speaker who is trying to understand the astonishing beauty of a particular woman. यहाँ पे जो सेटिंग है जो पोएम की वो कहीं बाहर या किसी भौतिक स्थान पे जगह नहीं बनाती है या उसकी लोकेशन जो एक भौतिक स्थान नहीं है बल्कि कहाँ है जो पोइट है उसका मस्तिष्क है. द पोएम डज इवोक ए काइंड ऑफ सेटिंग mentioning a clear and starry nighting in the opening lines of the tender light later in the stanza. There is a certain atmosphere than one which is contrasted on a kind of gentle and delicate light, but it is not really wedded to a particular location. The poem also casts a kind of microscopic gaze on the woman's outer appearance, making this is a part of the setting too. The poem and the romanticism. We can say that She Walks in Beauty is a romantic poem that has a lot of characteristic of the moment such as क्या क्या विशेषताएं हैं रोमांटिसिज्म की इस पोएम में. वो है medieval features, strong emotions as a source of aesthetic experience, and inclination to talk about nature and love. यहाँ पे कवि है जो लव और नेचर के बारे में बात करता है. medieval feature यानी कि मध्यकाल से रिलेटेड जो फीचर्स है कविता में वो भी यूज़ किए गए हैं. साथ ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं इस कविता के माध्यम से प्रकट करता है कवि स्वयं के. तो इस प्रकार ये पोएम ख़त्म होती है सी वॉक्स इन ब्यूटी. थैंक यू.